سورۃ یونس۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو گیان ایوم تتو درشتا سے پریپورن ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر پرکاشنا بھیجی کہ بے خبری میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی پرتشٹھا اور سمانت پد ہے۔ اس پر انکار کرنے والوں نے کہا کہ یہ ویکتی تو کھلا جادوگر ہے۔ واستوکتا یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ایشور ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر راج سنگھاسن پر براجمان ہو کر وشو کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی انمتی کے بعد سفارش کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اتہ تم اسی کی بندگی کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤگے؟ اسی کی اور تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی شروعات وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کرم کیے ان کو انصاف کے ساتھ اچھا بدلہ دے، اور جنہوں نے انکار کی نیتی اپنائی وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں، ستیہ کے اس انکار کے بدلے میں جو وہ کرتے رہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو پرکاشمان بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک نشچت کر دیں، تاکہ تم اس سے ورشوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ ستیانکول ہی پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو گیانوان ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو استیہ دیکھنے اور استیہ کاریہ کرنے سے بچنا چاہتے ہیں۔ واستوکتا یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور سنتشٹ ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کی اور سے اساودھانی برت رہے ہیں، ان کا انتم ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کے بدلے میں جن کا ارجن وہ اپنی اس غلط دھارنا اور غلط نیتی کے کارن کرتے رہے۔ اور یہ بھی ستیہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، ارتھات جنہوں نے ان سچائیوں کو مانا جو اس کتاب میں سامنے لائی گئی ہیں اور اچھے کام کرتے رہے، انہیں ان کا پالن کرتا رب ان کے ایمان کے کارن سیدھی راہ چلائے گا۔ نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی پکار یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا انت اس پر ہوگا کہ ساری تعریف سارے جہان کے رب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا ہے جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو کام کرنے کی ان کی مہلت کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی کٹھن سمے آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ مانو اس نے کبھی اپنے کسی برے سمے پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح مریادہ کا النگھن کرنے والوں کے لیے ان کی کرتوتیں خوشنما بنا دی گئی ہیں۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا جب انہوں نے ظلم کی نیتی اپنائی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان کو سویکار ہی نہ کیا۔ اس طرح ہم اپرادھیوں کو ان کے اپرادھوں کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے کرم کرتے ہو۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بدلے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ سنشودھن کرو۔ اے نبی، ان سے کہو
मेरा ये काम नहीं है कि अपनी ओर से इसमें कोई परिवर्तन कर लूं। मैं तो बस उस प्रकाशना यानी वही का अनुयायी हूं जो मेरे पास भेजी जाती है। अगर मैं अपने रब का आदेश न मानूं तो मुझे एक बड़े भयंकर दिन के अजाब का डर है। और कहो, अगर अल्लाह की इच्छा यही होती तो मैं ये कुरान तुम्हें कभी न सुनाता और अल्लाह तुम्हें इसकी खबर तक न देता। आखिर इससे पहले मैं एक उम्र तुम्हारे बीच गुजार चुका हूं। क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? फिर उससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो एक झूठी बात गढ़कर अल्लाह से जोड़े या अल्लाह की वास्तविक आयतों को झुठलाए। यकीनन अपराधी कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ये लोग अल्लाह के सिवा उनको पूज रहे हैं जो इनको न हानि पहुंचा सकते हैं न लाभ, और कहते ये हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। ऐ नबी, इनसे कहो, क्या तुम अल्लाह को उस बात की खबर देते हो जिसे न वो आसमानों में जानता है और न जमीन में? पाक है वो और उच्च है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। शुरू में सारे इंसान एक ही समुदाय यानी उम्मत के थे। बाद में उन्होंने विभिन्न धारणाएं और पंथ बना लिए। और अगर तेरे रब की ओर से पहले ही एक बात निश्चित न कर ली गई होती तो जिस चीज में वे परस्पर विभेद कर रहे हैं उसका फैसला कर दिया जाता। और ये जो वे कहते हैं कि इस नबी पर इसके रब की ओर से कोई निशानी क्यों न उतारी गई, तो इनसे कहो, गैब का मालिक और अधिकारी तो अल्लाह ही है। अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। लोगों का हाल ये है कि मुसीबत के बाद जब हम उनको रहमत यानी दयालुता का मजा चखाते हैं तो तुरंत ही वे हमारी निशानियों के मामले में चालबाजियां शुरू कर देते हैं। इनसे कहो, अल्लाह अपनी चाल में तुमसे ज्यादा तेज है। उसके फरिश्ते तुम्हारी सब मक्कारियों को लिख रहे हैं। वो अल्लाह ही है जो तुम्हें जल और थल की सैर कराता है। अतएव जब तुम नौकाओं में सवार होकर अनुकूल हवा पर प्रसन्न और खुशी के साथ सफर कर रहे होते हो और फिर अचानक प्रतिकूल हवा का जोर होता है और हर ओर से मौजों के थपेड़े लगते हैं और मुसाफिर समझ लेते हैं कि तूफान में घिर गए, उस समय सब अपने दीन धर्म को अल्लाह ही के लिए खालिस करके उससे दुआएं मांगते हैं कि अगर तूने हमको इस बला से निकाल दिया तो हम शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। मगर जब वो उनको बचा लेता है तो फिर वही लोग सत्य से हटकर जमीन में विद्रोह करने लगते हैं। लोगों, तुम्हारा ये विद्रोह तुम्हारे ही विरुद्ध पड़ रहा है। दुनिया की जिंदगी के थोड़े दिनों के मजे हैं, लूट लो, फिर हमारी ओर तुम्हें पलट कर आना है। उस समय हम तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। ये दुनिया की जिंदगी जिसके नशे में चूर होकर तुम हमारी निशानियों की अनदेखी कर रहे हो, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि आसमान से हमने जल बरसाया तो जमीन की उपज जिसे आदमी और जानवर सब खाते हैं खूब घनी हो गई। फिर ठीक उस समय जबकि जमीन अपनी बहार पर थी और खेतियां बनी सवरी खड़ी थीं और उनके मालिक समझ रहे थे कि अब हमें उनसे लाभ उठाने की सामर्थ्य प्राप्त है, अचानक रात को या दिन को हमारा आदेश आ गया और हमने उसे ऐसा गारत करके रख दिया कि मानो कल वहां कुछ था ही नहीं। इस तरह हम निशानियां खोल खोल कर पेश करते रहे हैं उन लोगों के लिए जो सोचने समझने वाले हैं। तुम इस अस्थायी जिंदगी के धोखे में पड़ रहे हो और अल्लाह तुम्हें सलामती के घर की ओर बुला रहा है। राह पर लाना उसके अधिकार में है, जिसको वो चाहता है सीधा मार्ग दिखा देता है। जिन लोगों ने भलाई का तरीका अपनाया उनके लिए भलाई है और उसके अलावा अनुग्रह। उनके चेहरों पर कालिख और रुसवाई न छाएगी। वे जन्नत के अधिकारी हैं जहां वे हमेशा रहेंगे। और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई उनकी बुराई जैसी है वैसा ही वे बदला पाएंगे। रुसवाई उन पर छाई होगी, कोई अल्लाह से उनको बचाने वाला न होगा। उनके चेहरों पर ऐसा अंधकार छाया हुआ होगा जैसे रात के काले पर्दे उन पर पड़े हुए हों। वे दोज़ख के पात्र हैं जहां वे हमेशा रहेंगे। जिस दिन हम उन सबको एक साथ अपने न्यायालय में इकट्ठा करेंगे, फिर उन लोगों से जिन्होंने साझी ठहराया है कहेंगे कि ठहर जाओ, तुम भी और तुम्हारे बनाए हुए साझीदार भी।
फिर हम उनके बीच से अजनबियत यानी अपरिचितता का पर्दा हटा देंगे और उनके साझीदार कहेंगे कि तुम हमारी बंदगी तो नहीं करते थे। हमारे और तुम्हारे बीच अल्लाह की गवाही काफी है कि तुम अगर हमारी बंदगी करते भी थे तो हम तुम्हारी इस बंदगी से बिल्कुल बेखबर थे। उस समय हर व्यक्ति अपने किए का मजा चख लेगा, सब अपने वास्तविक मालिक की ओर फेर दिए जाएंगे और वे सारे झूठ जो उन्होंने घड़ रखे थे गुम हो जाएंगे। उनसे पूछो, कौन तुमको आसमान और जमीन से रोजी देता है? ये सुनने और देखने की शक्तियां किसके अधिकार में हैं? कौन बेजान में से जानदार को और जानदार में से बेजान को निकालता है? कौन इस विश्व की व्यवस्था का उपाय कर रहा है? वे जरूर कहेंगे कि अल्लाह। कहो, फिर तुम सत्य के विरुद्ध चलने से परहेज नहीं करते? तब तो यही अल्लाह तुम्हारा वास्तविक रब है। फिर सत्य के बाद पथभ्रष्टता के सिवा और क्या बाकी रह गया? आखिर ये तुम किधर फिराए जा रहे हो? ऐ नबी, देखो, इस तरह नाफरमानी करने वालों पर तुम्हारे रब की बात सत्य घटित हो गई कि वह हरगिज नहीं मानेंगे। इनसे पूछो, तुम्हारे ठहराए हुए साझीदारों में कोई है जो सृष्टि का आरंभ भी करता हो और फिर उसकी पुनरावृत्ति भी करे? कहो, वो केवल अल्लाह है जो सृष्टि का आरंभ भी करता है और उसकी पुनरावृत्ति भी। फिर तुम ये किस उल्टी राह पर चलाए जा रहे हो? इनसे पूछो, तुम्हारे ठहराए हुए साझीदारों में से कोई ऐसा भी है जो सत्य का मार्ग दिखाता हो? कहो, वो सिर्फ अल्लाह है जो सत्य का मार्ग दिखाता है। फिर भला बताओ, जो सत्य का मार्ग दिखाता है वो इसका ज्यादा हक रखता है कि उसका अनुसरण किया जाए, या वो जो खुद मार्ग नहीं पाता? ये और बात है कि उसको मार्ग दिखाया जाए। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? कैसे उल्टे उल्टे फैसले करते हो? वास्तविकता ये है कि उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ अटकल और गुमान के पीछे चले जा रहे हैं। हालांकि अटकल सत्य की जरूरत को कुछ भी पूरा नहीं करता। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। और ये कुरान वो चीज नहीं है जो अल्लाह की प्रकाशना यानी वही और शिक्षा के बिना रचा जा सके, बल्कि ये तो जो कुछ पहले आ चुका था उसकी पुष्टि और विशिष्ट किताब का विस्तार है। इसमें कोई शक नहीं कि ये विश्व के शासक की ओर से है। क्या ये लोग कहते हैं कि पैगंबर ने इसे खुद रच लिया है? कहो, अगर तुम अपने इस इल्जाम में सच्चे हो तो एक सूरा इस जैसी रच कर लाओ और एक अल्लाह को छोड़कर जिसको बुला सकते हो सहायता के लिए बुला लो। वास्तविकता ये है कि जो चीज इनके ज्ञान की पकड़ में नहीं आई और जिसका नतीजा भी इनके सामने नहीं आया, उसको इन्होंने अकारण अटकल पच्चू झुठला दिया। इसी तरह तो इनसे पहले के लोग भी झुठला चुके हैं। फिर देख लो उन जालिमों का क्या अंजाम हुआ। इनमें से कुछ लोग ईमान लाएंगे और कुछ नहीं लाएंगे, और तेरा रब उन बिगाड़ पैदा करने वालों को खूब जानता है। अगर ये तुझे झुठलाते हैं तो कह दे कि मेरा कर्म मेरे लिए है और तुम्हारा कर्म तुम्हारे लिए। जो कुछ मैं करता हूँ उसकी जिम्मेदारी से तुम बरी हो, और जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूँ। इनमें बहुत से लोग हैं जो तेरी बातें सुनते हैं, मगर क्या तू बहरों को सुनाएगा चाहे वे कुछ न समझते हों? इनमें बहुत से लोग हैं जो तुझे देखते हैं, मगर क्या तू अंधों को राह बताएगा चाहे उन्हें कुछ न सूझता हो? वास्तविकता ये है कि अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, लोग खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते हैं। आज ये दुनिया की जिंदगी में मस्त हैं, और जिस दिन अल्लाह इनको इकट्ठा करेगा तो यही दुनिया की जिंदगी इन्हें ऐसी लगेगी मानो ये सिर्फ एक घड़ी भर आपस में जान पहचान करने को ठहरे थे। उस समय सिद्ध हो जाएगा कि वास्तव में बड़े घाटे में रहे वे लोग जिन्होंने अल्लाह से मुलाकात को झुठलाया और हरगिज वे सीधे मार्ग पर न थे। जिन बुरे परिणामों से हम इन्हें डरा रहे हैं उनका कोई हिस्सा हम तेरे जीते जी दिखा दें या उससे पहले ही तुझे उठा लें, हर हाल में इन्हें आना हमारी तरफ ही है, और जो कुछ ये कर रहे हैं उस पर अल्लाह गवाह है। हर उम्मत यानी समुदाय के लिए एक रसूल है। फिर जब किसी समुदाय के पास उसका रसूल आ जाता है तो उसका फैसला
पूरे न्याय के साथ चुका दिया जाता है और उस पर रत्ती भर जुल्म नहीं किया जाता। कहते हैं, अगर तुम्हारी ये धमकी सच्ची है तो आखिर ये कब पूरी होगी? कहो, मेरे अधिकार में तो खुद अपना नफा और नुकसान भी नहीं, सब कुछ अल्लाह की इच्छा पर अवलंबित है। हर समुदाय के लिए मोहलत की एक अवधि है। जब ये अवधि पूरी हो जाती है तो घड़ी भर भी आगे और पीछे नहीं होता। इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह का अजाब अचानक रात को या दिन को आ जाए तो तुम क्या कर सकते हो? आखिर ये ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए अपराधी जल्दी मचाएं? क्या जब वो तुम पर आ पड़े उसी समय तुम उसे मानोगे? अब बचना चाहते हो, हालांकि तुम खुद ही इसके जल्दी आने की मांग कर रहे थे। फिर जालिमों से कहा जाएगा कि अब हमेशा के अजाब का मजा चखो। जो कुछ तुम कमाते रहे हो उसके बदले के सिवा और क्या बदला तुमको दिया जा सकता है? फिर पूछते हैं, क्या वास्तव में ये सच है जो तुम कह रहे हो? कहो, मेरे रब की कसम, ये बिल्कुल सच है और तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि उसे प्रकट होने से रोक दो। अगर हर उस व्यक्ति के पास जिसने जुल्म किया है सारी धरती का धन भी हो तो उस अजाब से बचने के लिए वो उसे फिदिया में देने को तैयार हो जाएगा। जब ये लोग उस अजाब को देख लेंगे तो दिल ही दिल पछताएंगे, मगर उनके बीच पूरे इंसाफ से फैसला किया जाएगा, कोई जुल्म उन पर न होगा। सुनो, आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है, सुन रखो। अल्लाह का वादा सच्चा है, मगर अधिकतर लोग जानते नहीं हैं। वही जिंदगी प्रदान करता है और वही मौत देता है और उसी की ओर तुम सबको पलटना है। लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से उपदेश आ गया है। ये वो चीज है जो दिलों के रोगों को चंगा करने के लिए है और जो उसे स्वीकार कर लें उनके लिए मार्गदर्शन और दयालुता है। ऐ नबी, कहो कि ये अल्लाह का अनुग्रह और उसकी दया है कि ये चीज उसने भेजी। इस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए। ये उन सब चीजों से उत्तम है जिन्हें लोग समेट रहे हैं। ऐ नबी, इनसे कहो, तुम लोगों ने कभी ये भी सोचा है कि जो रोजी अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारी थी उसमें से तुमने स्वयं ही किसी को हराम और किसी को हलाल ठहरा लिया? इनसे पूछो, अल्लाह ने तुमको इसकी अनुमति दी थी या तुम अल्लाह पर झूठ गढ़ रहे हो? जो लोग अल्लाह पर झूठा इल्जाम लगाते हैं उनका क्या गुमान है कि क़यामत के दिन उनसे क्या मामला होगा? अल्लाह तो लोगों पर मेहरबानी की नजर रखता है, मगर बहुतेरे लोग ऐसे हैं जो कृतज्ञता नहीं दिखाते। ऐ नबी, तुम जिस हाल में भी होते हो और कुरान में से जो कुछ भी सुनाते हो और लोगों तुम भी जो कुछ करते हो उस सब के बीच में हम तुमको देखते रहते हैं। कोई रत्ती भर चीज आसमान और जमीन में ऐसी नहीं है, न छोटी न बड़ी, जो तेरे रब की नजर से छिपी हो और एक स्पष्ट चिट्ठे यानी दफ्तर में अंकित न हो। सुनो, जो अल्लाह के दोस्त हैं उनके लिए किसी डर और रंज का अवसर नहीं है। जो ईमान लाए और जिन्होंने खुदा से डरने की नीति अपनाई, दुनिया और आखिरत दोनों जिंदगी में उनके लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, यही बड़ी सफलता है। ऐ नबी, जो बातें ये लोग तुझ पर बनाते हैं उससे तू शोकाकुल न हो। प्रभुत्व सारा का सारा अल्लाह के अधिकार में है और वो सब कुछ सुनता और जानता है। जान लो, आसमानों के बसने वाले हों या जमीन के, सबका मालिक अल्लाह है। और जो लोग अल्लाह के सिवा कुछ अपने मनगढ़ंत साझीदारों को पुकार रहे हैं वे निरे भ्रम और गुमान के पीछे चल रहे हैं और सिर्फ अटकलबाजियां करते हैं। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि उसमें चैन पाओ और दिन को प्रकाशमान बनाया। इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो खुले कानों से पैगंबर के संदेश को सुनते हैं। लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। पाक है अल्लाह, वो तो निष्प्रिय है। आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो सबका मालिक है। तुम्हारे पास इसके लिए आखिर क्या प्रमाण है? क्या तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहते हो जो तुम्हारे ज्ञान में नहीं? ऐ नबी, कह दो
कि जो लोग अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं वे हरगिज सफल नहीं हो सकते। थोड़े दिनों की दुनिया की जिंदगी में मजे कर लें, फिर हमारी ओर उनको पलटना है। फिर हम उस इनकार के बदले में जो वे कर रहे हैं उनको भारी अजाब का मजा चखाएंगे। इनको नूह का वृत्तांत सुनाओ, उस समय का हाल जब उसने अपनी कौम से कहा था कि ए कौम के भाइयों, अगर मेरा तुम्हारे बीच रहना और अल्लाह की आयतें सुना सुना कर तुम्हें गफलत से जगाना तुम्हारे लिए असह्य हो गया है तो मेरा भरोसा अल्लाह पर है। तुम अपने ठहराए हुए साझीदारों को साथ लेकर अपना एक सर्वमान्य फैसला कर लो और जो योजना तुम्हारे सामने हो खूब सोच समझ लो ताकि उसका कोई पहलू तुम्हारी दृष्टि से छिपा न रहे। फिर मेरे विरुद्ध उसे क्रियात्मक रूप दो और मुझे हरगिज मोहलत न दो। तुमने मेरे उपदेश से मुंह मोड़ा तो मेरी क्या हानि की? मैं तुमसे कोई पारिश्रमिक नहीं मांग रहा था। मेरी मजदूरी तो अल्लाह के जिम्मे है और मुझे आदेश दिया गया है कि चाहे कोई माने या न माने, मैं खुद मुस्लिम यानी ईश्वर का आज्ञाकारी बनकर रहूं। उन्होंने उसे झुठला दिया और परिणाम ये हुआ कि हमने उसे और उन लोगों को जो उनके साथ नाव में थे बचा लिया और उन्हीं को जमीन में उत्तराधिकारी बनाया और उन सब लोगों को डुबो दिया जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था। अतः देख लो कि जिन्हें चेतावनी दी गई थी और फिर भी उन्होंने नहीं माना, उनका क्या परिणाम हुआ। फिर नूह के बाद हमने विभिन्न पैगंबरों को उनकी कौमों की ओर भेजा और वे उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, मगर जिस चीज को उन्होंने पहले झुठला दिया था उसे फिर नहीं माना। इस तरह हम सीमा से आगे बढ़ जाने वालों के दिलों पर ठप्पा लगा देते हैं। फिर उनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों की ओर भेजा, मगर उन्होंने अपनी बड़ाई का गर्व किया और वे अपराधी लोग थे। तो जब तुम्हारे पास से सत्य उनके सामने आया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो खुला जादू है। मूसा ने कहा, तुम सत्य को ये कहते हो जब वो तुम्हारे सामने आ गया? क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर सफल नहीं हुआ करते। उन्होंने जवाब में कहा, क्या तू इसलिए आया है कि हमें उस रास्ते से फेर दे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है और जमीन में तुम दोनों की बड़ाई कायम हो जाए? तुम्हारी बात तो हम मानने वाले नहीं हैं। और फिरौन ने अपने आदमियों से कहा कि हर कुशल जानकार जादूगर को मेरे सामने हाजिर करो। जब जादूगर आ गए तो मूसा ने कहा, जो कुछ तुम्हें फेंकना है फेंको। और जब उन्होंने अपने अंछर फेंक दिए तो मूसा ने कहा, जो कुछ तुमने फेंका है वो जादू है, अल्लाह अभी इसे व्यर्थ किए देता है। बिगाड़ पैदा करने वालों के काम को अल्लाह सुधरने नहीं देता और अल्लाह अपने वचनों के द्वारा सत्य को सत्य कर दिखाता है, चाहे अपराधियों को वो कितना ही अप्रिय हो। फिर देखो कि मूसा को उसकी कौम में से कुछ नवयुवकों के सिवा किसी ने न माना, फिरौन के डर से और अपनी कौम के सरदारों के डर से, जिन्हें डर था कि फिरौन उन्हें अजाब में डालेगा। और वाकया ये है कि फिरौन को जमीन में प्रभुत्व प्राप्त था और वो उन लोगों में से था जो किसी सीमा पर रुकते नहीं हैं। मूसा ने अपनी कौम से कहा कि लोगों, तुम वास्तव में अल्लाह पर ईमान लाए हो तो उस पर भरोसा करो अगर मुसलमान हो। उन्होंने जवाब दिया, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया। ऐ हमारे रब, हमें जालिम लोगों के लिए फितना न बना और अपनी दयालुता से हमको अधर्मियों से छुटकारा दे। और हमने मूसा और उसके भाई को संकेत दिया कि मिस्र में कुछ घर अपनी कौम के लिए प्राप्त कर लो और अपने उन घरों को किबला ठहरा लो और नमाज कायम करो और ईमान वालों को खुशखबरी दे दो। मूसा ने दुआ की, ऐ हमारे रब, तूने फिरौन और उसके सरदारों को दुनिया की जिंदगी में शोभा और माल दे रखे हैं। ऐ रब, क्या ये इसलिए है कि वे लोगों को तेरे मार्ग से भटकाएं? ऐ रब, उनके माल नष्ट कर दे और उनके दिलों पर ऐसा ठप्पा लगा दे कि ईमान न लाएं जब तक दर्दनाक अजाब न देख लें। अल्लाह ने जवाब दिया, तुम दोनों की दुआ कबूल की गई। जमे रहो और उन लोगों के मार्ग पर हरगिज न चलना जो ज्ञान नहीं रखते।
और हमने इसराइल की संतान को समुद्र पार करा दिया। फिर फिरौन और उसकी सेनाएं जुल्म और ज्यादती के उद्देश्य से उनके पीछे चलीं। यहां तक कि जब फिरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया कि वास्तविक खुदा उसके सिवा कोई नहीं है जिस पर इसराइल की संतान ईमान लाई, और मैं भी मुस्लिम यानी आज्ञाकारियों में से हूं। जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तक तो नाफरमानी करता रहा और बिगाड़ पैदा करने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए शिक्षा सामग्री बने, अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। हमने इसराइल की संतान को बहुत अच्छा ठिकाना दिया और अत्यंत उत्तम जिंदगी के साधन उन्हें प्रदान किए। फिर उन्होंने परस्पर विभेद उसी समय किया जबकि ज्ञान उनके पास आ चुका था। यकीनन तेरा रब क़यामत के दिन उनके बीच उस चीज का फैसला कर देगा जिसमें वे मतभेद करते रहे हैं। अब अगर तुझे उस मार्गदर्शन की ओर से कुछ भी शक हो जो हमने तुझ पर अवतरित किया है, तो उन लोगों से पूछ ले जो पहले से किताब पढ़ रहे हैं। वास्तव में ये तेरे पास सत्य ही आया है तेरे रब की ओर से, अतः तू शक करने वालों में से न हो और उन लोगों में शामिल न हो जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया है, नहीं तो तू नुकसान उठाने वालों में से होगा। वास्तविकता ये है कि जिन लोगों पर तेरे रब का वचन सिद्ध हो गया है, उनके सामने चाहे कोई निशानी आ जाए, वे कभी ईमान नहीं लाते जब तक कि दर्दनाक अजाब सामने आता न देख लें। फिर क्या ऐसा कोई उदाहरण है कि एक बस्ती अजाब देखकर ईमान लाई हो और उसका ईमान उसके लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ हो? यूनुस की कौम के सिवा उसका कोई उदाहरण नहीं। वो कौम जब ईमान ले आई थी तो अलबत्ता हमने उस पर से दुनिया की जिंदगी में अपमान का अजाब टाल दिया और उसको एक अवधि तक जिंदगी से लाभान्वित होने का अवसर दे दिया था। अगर तेरे रब की इच्छा ये होती कि जमीन में सब ईमान वाले और आज्ञाकारी ही हों, तो जमीन के सारे वासी ईमान ले आए होते। फिर क्या तू लोगों को मजबूर करेगा कि वे ईमान वाले यानी मोमिन हो जाएं? कोई प्राणी अल्लाह की अनुमति के बिना ईमान नहीं ला सकता, और अल्लाह का तरीका ये है कि जो लोग बुद्धि से काम नहीं लेते वो उन पर गंदगी डाल देता है। इनसे कहो, जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसे आंखें खोल कर देखो, और जो लोग ईमान लाना ही नहीं चाहते उनके लिए निशानियां और चेतावनियां आखिर क्या लाभप्रद हो सकती हैं। अब ये लोग इसके सिवा और किस चीज के इंतजार में हैं कि वही बुरे दिन देखें जो इनसे पहले गुजरे हुए लोग देख चुके हैं। इनसे कहो, अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। फिर जब ऐसा समय आता है तो हम अपने रसूलों को और उन लोगों को बचा लिया करते हैं जो ईमान लाए हों। हमारा यही तरीका है, हम पर यह हक है कि ईमान वालों को बचा लें। ए नबी, कह दो कि लोगों, अगर तुम अभी तक मेरे धर्म के बारे में किसी शक में हो तो सुन लो कि तुम अल्लाह के सिवा जिनकी बंदगी करते हो, मैं उनकी बंदगी नहीं करता, बल्कि सिर्फ उसी अल्लाह की बंदगी करता हूँ जिसके अधिकार में तुम्हारी मौत है। मुझे आदेश दिया गया है कि मैं ईमान वालों में से हूँ, और मुझसे कहा गया है कि एकाग्र होकर अपने आप को ठीक ठीक इस धर्म पर जमा दे और हरगिज हरगिज मुशरिकों में से न हो, और अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसी सत्ता को न पुकार जो तुझे न फायदा पहुंचा सकती है न नुकसान। अगर तू ऐसा करेगा तो जालिमों में से होगा। अगर अल्लाह तुझे किसी मुसीबत में डाले तो खुद उसके सिवा कोई नहीं जो उस मुसीबत को टाल दे, और अगर वो तेरे हक में किसी भलाई का इरादा करे तो उसके उदार अनुग्रह को फेरने वाला भी कोई नहीं है। वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है अनुग्रहित करता है, और वो माफ करने वाला और रहम करने वाला है। ऐ मोहम्मद, कह दो कि लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से सत्य आ चुका है। अब जो सीधा मार्ग अपनाए उसका सीधा मार्ग ग्रहण करना उसी के लिए लाभदायक है, और जो गुमराह रहे उसकी गुमराही उसी के लिए विनाशकारी है।
اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالے دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی، تم اس آدیش کا انوسرن کیے جاؤ جو تمہاری اور وہی یعنی پرکاشنا دوارا اوترت کیا جا رہا ہے، اور صبر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورة ہود۔